When I first time watched Fight Club, I really thought that Brad Pitt, who was playing the character Tyler Durden, is just a criminal. I really couldn't understand the movie, but I enjoyed it. The second time I watched Fight Club, I thought, nah, this character is a little cool. The third time I watched Fight Club, I realized that Tyler Durden is trying to teach us something. He's trying to teach us to let go and just be ourselves. You know, I realize that schools, our society, and everything has just programmed us to act in a way which favors, the system. And we are not any programs, we are not robots, we are humans. We are meant to have emotions, we have meant to have our own personal traits. जब मैं पहले दिन स्कूल गया, मैं धीरे धीरे सब लोगों से फेमिलियर होने लगा. मुझे याद है, मैं छोटी क्लासेस में ही था. हमारे स्कूल में ना सबसे शुरू होने से जैसे हमारा स्कूल शुरू हुआ, उसके जस्ट बाद असेंबली होती थी. असेंबली में हम लोग लाइन बना के जाते थे, राइट. तो मुझे याद है, मैं और मेरे दोस्त पाँच दोस्त थे हम, राइट. या हम लोगों ने एक लाइन बनाई, और हमारे सर ना एक स्ट्रेट लाइन में थे, ऐसे सबके. वी वर इन प्रॉपर लाइन. हम लाइन से गए और लाइन से वापस आए. एंड द टीचर अप्रिशिएटेड अस. वी लाइक्ड इट, ऑफ कोर्स. दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, और धीरे धीरे हम एक लाइन में चलते रहे. हम लोग क्लास में एकदम सीधा बैठते थे, ऐसे टांगे एकदम सीधी, जैसे एक चेयर पे बैठते हैं. एक आप एक नर्डी बच्चे को देखते हो वो चेयर पे कैसे बैठा होता है. एग्जैक्टली वी वर सिटिंग लाइक दैट. वी वर टॉकिंग विद एलिगेंस. वी वर यूजिंग वर्ड्स लाइक प्लीज, थैंक यू, वेलकम एवरी टाइम, just to look good in the eyes of teachers. And I did this thing for 6 years of my life. And then I changed. I started to talk like I wanted to. I sat on the chair like I wanted to. I walked like I wanted to. The teachers told me that कि अगर आप ये सब नहीं करोगे, लाइन में नहीं आओगे, या फिर जो कुछ भी आपने देखा होगा स्कूल के टीचर्स बोलते हैं, so you will become an unauthorized member of the society. You will not be disciplined. आपको डिसिप्लिन नहीं आएगा. और ये सब हम एक डिसिप्लिन बनाने के लिए करते हैं. बट मुझे ऐसा लगता था कि इज नॉट डिसिप्लिन. वी आर वो हमारे दिमाग में बस एक प्रोग्राम डाल रहे हैं कि आपको इस तरीके से चलना है, एक के पीछे एक. यू आर मेंट टू वॉक विद हैंड्स एट द बैक. यू आर नॉट अलाउड टू वॉक हाउ यू वांट टू. You are not allowed to sit how you want to. और मुझे इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी. एंड आई फेल आउट ऑफ फेवर ऑफ टीचर्स. आई काफ़ी सारे लोग मुझसे नफरत करने लगे. एंड इन द प्रोसेस आई गेन्ड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एज वेल. मेरे अंदर का वो 6 साल पुराना बच्चा मरा नहीं था. मैं हर रोज़ सोचता था कि काश ये लोग मुझे आज भी पसंद करते. मेरे टीचर्स मुझे पसंद क्यों नहीं करते? वाई डोंट दे लाइक मी? देन आई वॉच द मूवी फाइट क्लब फॉर द फर्स्ट टाइम. आई रियली थॉट दैट टाइलर डर्डन इज अ क्रिमिनल. देन आई वॉच द मूवी सेकेंड टाइम. I thought he was cool. Then I watched the movie third time. And I realized that why don't my teachers like me? Because I became the Tyler Durden. I did things that I liked to do, and I ignored the things that I didn't like. I talked to the people who I wanted to, and didn't talk to the people who I didn't wanted to. I sat like I wanted to. I talked like I wanted to. Everything I did was what I wanted. And that is what made people hate me a lot. My parents hated me for it. My teachers hated, friends hated me for it. But in the process I realized that this is what life actually is. Life is just being free. I was free. I didn't wanted to walk in a line. I was still walking in a line, but I was walking like I wanted to. I was still sitting nicely in class, but the way I wanted to. I was talking to the teachers, my friends, and anybody with respect, but just the way I wanted to. And this is what the school, the system doesn't want you to be. They want you to act like computers or as their servants. But the moment you think
दैट आई वांट टू चेंज, या फिर तुम्हें जिस भी मोमेंट पे ऐसा लगता है कि नहीं यार, आई एम अ पर्सन, आई माई ओन फीलिंग्स, मैं वो करूँगा जो मुझे पसंद है, द मोमेंट यू डू दैट एवरीबडी स्टार्ट्स टू हेट यू, एंड दैट इज़ व्हेन एक्चुअली you start to change and act as कि तुम्हें सही में उस टाइम अपनी ज़िंदगी में तुम्हें पीक मज़ा आने लगता है, क्योंकि तुम सही में तुम वो कर रहे होते हो जो तुम्हें करना है, तुम वो बनते हो जो तुम्हें बनना है। द सेकंड चीज़ आई रियलाइज्ड इज़ द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। लेट गो, मैं इस वर्ड को बहुत पहले से यूज़ करता था, आज से 4 साल पहले ही ये वर्ड थोड़ा थोड़ा फेमस होने लगा था, बट आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस वर्ड मेंट। मैं बस इसको वैसे यूज़ कर देता था, ओ आई लेट गो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बट आई कुडंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। क्या किस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्या है ये फ़र्क पड़ना? बट देन व्हेन आई वॉच्ड फाइट क्लब आई रियली रियलाइज्ड बट लेट गो मेंट। लेट गो एक्चुअली मीन्स कि आपको किसी भी चीज़ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और कोई भी चीज़ जो आपके हाथ में नहीं है आप उसकी फ़िक्र भी नहीं करते, राइट? लेट्स जस्ट सपोज कि you like a girl and you're about to propose her. Let's just suppose we always care about the result, कि हाँ होगी ना होगी, but I realized to just let go of it. I realized कि you should not even care about the response, you should care about your feelings and just tell the other person straight up, not even caring about the result. That is what actually letting go is actually the art of knowing things that you can't handle and not even thinking about them in your mind, not even pressuring yourself to knowing the outcome, to knowing the result of the outcome. That is what letting go is. Go of whether other people think of you, let go कि सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचेगी, let go कि आपके दोस्त, आपके टीचर, आपका स्कूल आपके बारे में क्या सोचेगा, just let go of it, and ये चीज़ फाइट क्लब में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाई गई है। ये चीज़ मुझे समझने के लिए मुझे फाइट क्लब को 3 बार देखना पड़ा था, बट आई होप ये चीज़ आप पहली बार में समझ जाएँ, एंड या I recommend you to watch Fight Club at least once in life.